آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو اسلام آباد بند نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لاک ڈاؤن کے خلاف پٹیشنز پر سماعت ہوئی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی پر تحریک انصاف کے احتجاج کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہائی کورٹ کا مزید یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی طے شدہ مقام پر اپنا احتجاج کر سکتی ہے۔ 31 نومبر کو عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی طلب کر لیا۔ عمران خان نے بنی گالہ میں اپنی جماعت کا مشاورتی اجلاس بلایا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچے گی، میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، ان کو رلاؤں گا میں۔ کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اجتماع ہے کوئی نہیں روک سکتے۔ ساتھ ہی انتظامیہ نے اسلام آباد میں اگلے 2 ماہ تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے بعد شہر کے علاقے E11 میں پی ٹی آئی کے یوتھ کنونشن کو پولیس نے منتشر کیا اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نہتی خواتین اور کارکنوں پر پولیس نے تشدد کیا۔ دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک ویزا آفیسر محمود اختر کو ملک چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے دے دیے۔ محمود اختر پر جاسوسی کا الزام ہے اور انہیں پرسونا نان گریٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے اس عمل پر شدید احتجاج کیا اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 051260027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، فون ملتے ہی آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے کنیکٹ ہو اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول-بول-پاکستان_، اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ بھائی گلمین، میں یہ بہت بھاری دل کے ساتھ آج کا پروگرام کر رہا ہوں۔ اتنا عرصہ اس دھندے میں گزار کے دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ اب کچھ ہو گیا، آج کیا ہو گیا نصرت صاحب؟ لیکن نہیں، وہ دکھ یہ ہو رہا ہے کہ 2008 کے بعد سے آخری ہم نے یہ پکڑ دھکڑ، آنسو گیس وغیرہ وغیرہ، یہ مشرف صاحب کے آخری دنوں میں عدلیہ تحریک کے دوران دیکھی۔ بالکل۔ میرے جیسے کچھ اینکرز جو ہیں وہ بین بھی ہوئے، ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی بند ہوئے، لائیو نشریات بھی بند ہوئیں، اور پھر سب کچھ بند کر کے تو بہرحال، لیکن جو بھی ہوا اس کو بھول جائیں۔ 2008 کے بعد سے یہ جو 8 سال گزرے ہیں، ان میں 2 حکومتیں بھی آئی ہیں، لانگ مارچز بھی ہوئے ہیں، دھرنے بھی ہوئے ہیں، یعنی طاہر القادری صاحب کے 2 مرتبہ ہوئے ہیں۔ بالکل، پیپلز پارٹی کے دور اور میں گئے تھے۔ یہاں پر اسلام آباد میں 124 دنوں تک کے دھرنے بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک اوورآل ایک رونق تھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں ریاست کا دل ذرا بڑا تھا، ڈسینٹ کی آواز تھی۔ اگر آپ مخالفت میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ اپنی بات کیجئے، میں اپنی بات کروں۔ بدقسمتی سے اب جو فضا بن رہی ہے، اس میں ایک اسٹریٹ کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دونوں فریقین کے لیے، خواہ وہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ یہ ایدر اور، ناؤ اور نیور والی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور جس طرح اس کی اوپننگ ہے، آج تو ہو گئی، یہ کوئی میرے جیسے آدمی کو جو بہت خوش تھا کہ چلو یار دیکھو، آج خاص طور پر یہ بات آپ نہیں محسوس کر سکتی، یہ آپ صرف میں کر سکتا ہوں یا میری نسل کا کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یس، جنہوں نے دیکھا ہے۔ آج کی تاریخ کیا ہے؟ 27 ڈیٹ، 27 اکتوبر۔ آپ کو پتا ہے یہ ڈیٹ کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں، کیا اہمیت ہے؟ 7 اکتوبر 1958 کو، 1958 کو اس بد نصیب ملک میں پہلا مارشل لاء لگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نظر بظاہر لگوایا گیا تھا ایک سویلین نام نہاد آئینی قانونی طریقے سے منتخب کروائے صدر کے ذریعے۔ 7 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو سکندر مرزا سے استعفیٰ لے کر ایوب خان نے براہ راست ٹیک اوور کر لیا، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے جو 10 سال تھے وہ تب شروع ہوتے ہیں، وہ
टेक्निकली 27 अक्टूबर से शुरू होते हैं, तो 27 अक्टूबर 2016 को जो कुछ मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैं तो उसके बाद ज़ाहिर है ये सारे मनाज़र तो मेरे तारीख़ में पढ़े हैं, लेकिन मैं स्कूल गोइंग किड था जब मैं बड़ा हुआ, और उस दौर में इतना जबर था, बात करने की आज़ादी नहीं थी, वो प्रेस पाबंद था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दूसरी या तीसरी जमात का तालिब इल्म था जब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना ने सदारती इलेक्शन था अयूब खान के खिलाफ, उन्हें हमारी दानिश में हरवा दिया गया था मैनिपुलेट करके, और उसकी वजह से मेरी नस्ल के लोगों में इतना गुस्सा, इतनी मज़ाहमत का जज्बा पैदा हुआ कि मुझे पहली मर्तबा जो पुलिस से पिटाई हुई, उस वक्त मैं 8th क्लास में पढ़ता था, और वो ब्रेक के बाद वो आप 8वीं जमात में थे नुसरत साहब जब आपको पहली दफ़ा? ठीक है, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद नुसरत साहब से बात करेंगे और आज जो सब कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। अच्छा बीबी, तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपना ख़ताब जो है इन तमाम वाक़यात के बाद कर दिया है। लगता है 2 नवंबर जल्दी आएगी नुसरत साहब, 2 कल से ही शुरू हो जाएगा जी, कह रहे ना कल एहतजाज हो रहा है, तो अब 2 नवंबर का काम तो कल से ही अब शुरू हो जाएगा। और टेक्निकली वो बात देखो, टेक्निकली वो बात इमरान खान साहब की दुरुस्त है, और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो कुछ आज हुआ है और जो कुछ होने जा रहा है, वो इसके बारे में अगर ये कहना कि ये अचानक हुआ है, ये हरगिज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो आई थिंक कि इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं। अब बातों को यहाँ से पकड़ना, वहाँ से पकड़ना, ये सब गलत बात है। ईमानदारी की बात करनी चाहिए कि आइडिया ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे। नवाज शरीफ इस्तीफा किस सूरत में दे कि जी यहाँ पर इस्लामाबाद में 10 लाख बंदा हो जाए, उसके बावजूद किसी ने जाके कहना है ना कि सब अब दें इस्तीफा, राइट, और उसके लिए रेफरेंस आ जाता है जहन में जनरल काकड़ फार्मूला। बार बार बात करते हैं हम, ठीक है ना जी, तो काकड़ फार्मूला हुआ था, लेकिन जो बात किसी ने इमरान खान साहब को समझाई नहीं, वो ये कि काकड़ फार्मूला में नवाज शरीफ ने 3 चीजें हासिल की थी। नंबर 1, उस वक्त जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम तजवीज किया था सरताज अजीज साहब ने, ठीक है, जो नवाज शरीफ साहब के थे। ठीक, गालिबन पहले से मुकमुका हुआ होगा, बीबी ने भी कहा अमन्ना व सदकना, ठीक है, राइट, ठीक हो गई बात। दूसरी बात यह कि उन्हें फ्रेश इलेक्शन मिले, बिल्कुल सही है, उसकी वजह से उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ा, लेकिन उनका यह ख्याल था कि उनके रास्ते की असल रुकावट गुलाम इसाक खान है। ठीक, तो गुलाम इसाक खान का इस्तीफा लिया गया, और उसके बाद से गुलाम इसाक खान फारिग। ठीक, तो इस फार्मूले के तहत अगर मौसूफ इस्तीफा देते हैं तो उनको क्या मिलता है, तो वो क्यों देंगे? नहीं देंगे, ठीक है, ये लॉजिकली देयर मेक्स नो सेंस, ठीक है, फाइन। आइडिया ये था कि अगर 2 नवंबर से पहले पहले हुकूमत को इतनी बौखलाहट में मुब्तला कर दो कि वो कुछ ऐसे वाकयात करें जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में फसादात फूट पड़े, मसलन के जो आज हुआ तो वैसे या आगे समझ, ठीक, अब उनकी दानिश में आज शाम जो वाकया हुआ है, उसके बाद जब वो कह रहे हैं ना कल वो सारे और तैयारी करें, अब इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस वक्त इमरान खान साहब को बहकाया जा सकता था कि आइए जी थानों में जाके अपने कारकुनों को रहा करवाते हैं। ठीक, वो अगर इस तरह अगर किसी की बातें सुनकर प्रवोक हो जाते तो गवर्नमेंट का पॉइंट एक हवाले से प्रूव हो जाता। तो इट्स गुड कि उन्होंने कहा हाँ मैं कल जाऊंगा लाल हवेली, मुझे पकड़ना तो पकड़ के दिखाओ, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, और वो लाल हवेली उस वक्त तक सील हो चुकी होगी, तो ये वगैरह वगैरह। जी अच्छा जी, ये कह रहे हैं कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुसरत साहब, बुशरा सैयद बात कर रही हूँ कराची से। जी बीवी आपका भाई मुझे जी थैंक यू वेरी मच, आपकी तवज्जो इस बारे में दिलानी थी कि जिस तहरीक का नाम इंसाफ रखा गया है, उसकी आज तक हमने सोशल जस्टिस या इंसाफ के नाम पर कोई भी
कोशिशें जी हमारे बीबी आप ठीक है ना जी। वो इस वक्त आई एम सॉरी कि मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है। हम एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं और आपको मौका, मेरा ख्याल है आज आप तीसरी मरतबा बात कर रही हैं, हम देते हैं। 2-1 मरतबा पहले हुआ है, लेकिन आज ये मौजू डिस्कस करने का नहीं है। मेरा आज मौजू ये है कि मेरी दानिश में मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप कह रहे थे आपको बहुत दुख हो रहा है ये देख के। जी हाँ, इसलिए कि इस सूरत हाल में देखो, अब ये मुख्तलिफ शहरों में भी अगर हंगामे फूट पड़े, जो कि कह रहे हैं कल के अब करें एहतजाज हो सकता तो है डेफिनेटली। उस सूरत हाल में क्या होगा? फर्ज करो अगर कराची में कल हंगामे फूटते हैं तो वहां पे जो पुलिस लोगों को रोकेगी, आंसू गैस चलाएगी, ये वो तो किसके हुक्म पर करेगी? जो सूबाई हुकूमत होगी। कौन सी, किसकी है? पीपल्स पार्टी की। ये पंजाब में तो खैर है ही, बिल्कुल वो तो रोकी तो गई। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में क्या करना उनकी है? अपनी मतलब हुकूमत है। क्या खुद अपने ही सूबे को जहां बिल्कुल। हुक्मरानी कर रहे हैं आपने लॉकडाउन करना है? ठीक, लेकिन पुलिस को कुछ तो ये करना होगा कि टेलीविजन के ऊपर होगा कि 4 इस तरह विंडो सर्जरी कि होंगी, ये कराची में ये और राइट। अल्लाह का शुक्र है मेरा हफ्ते का आज आखिरी प्रोग्राम है, वरना ये कि हम शायद इस प्रोग्राम में बार बार ब्रेकें आती रहती यहाँ या बिल्कुल कि ये हो गया, रुक जाए, आंसू गैस चल गई। तो मैं, असल बात ये है कि मेरी नस्ल के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को अफसोस ये है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी जिद्दोजहद से पूरी कौम ने और बड़ी जाने देने के बाद, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद तो कुछ स्पेस हासिल ना किया खोएं था, हम अपनी। वो खत्म हो रहा है बतदरीज। चलें, अच्छा है। टैक्स वो अच्छा अस्सलाम वालेकुम। साहब, अच्छा अच्छी बात है अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत जावेद साहब, इमरान हैदर नकवी बोल रहा हूँ टेक्सला से। जी, मेरा बोलो। क्वेश्चन आपसे ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और एयरपोर्ट बंद करने की बातें तो दुश्मन करते हैं। अगर इमरान खान को इतना ही शौक है शादी का, नया मंडप अरे सजाने भाई का, आई एम सॉरी, मैं अगर क्या हो आप गया लोगों को टेलीफोन, मेरे प्यारे भाई, खुदा का वास्ता है, मैं वाहिद शख्स हूँ, मैं झगड़ता हूँ अपने प्रोड्यूसर से। मैं जहाँ जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तानियों की फरासत पर, उनकी सियासी शऊर पर ईमान है, वो मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे। अब मैं इस मौके पर, अब आपकी बात भाई, वो अपोजिशन के रहनुमा हैं और बहुत ताकतवर रहनुमा है, और अपोजिशन कहती होती है हम शहर बंद कर देंगे। 1977 में पहिया जाम का लफ्ज नहीं आया था, याद नहीं रहा आपको? उसके नतीजे में फिर जो हुआ वो इमरान खान साहब नहीं याद रखते। तो वो अगर लॉकडाउन करके 77 को वापस लाना चाहते हैं तो उनकी मेहरबानी, अगर वो एक और ज़िया-उल हक लाना चाहते हैं, और अगर वो इस गुमान में है कि अगले ज़िया-उल हक आके इन्हें कहेंगे आइए, अगर अगले ज़िया-उल हक आए तो ये असगर खान होंगे, इमरान खान ही होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। नाइला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। जी सर, मैं ये सवाल करना चाह रही थी, आज शाम को जब हम अपने ऑफिस से घर आए और हमने टीवी चैनल ऑन किया तो उसमें जो हमें सीन नजर आ रहे थे वो ऐसे शो हो रहे थे जैसे कि वो जम्मू कश्मीर के हों। अरे रे, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है बीबी, अगर जम्मू कश्मीर होता। आप लोग भी बस जुल्म करती हैं मेरी बहन। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप खुदा न खास्ता मकबूजा श्रीनगर में रह रही होती तो इस वक्त वहां के किसी टेलीविजन प्रोग्राम में नुसरत जावेद नामी एंकर को टेलीफोन कर सकती थी ना, कोई लाइव नुसरत साहब क्या बात ना किया करें ना, अपने मुल्क के बारे में खुदा का खौफ करें। ये बड़ी मुश्किल से ये आजादी ली है। आपको वो देख के क्या फील हो रहा था? क्या ये पाकिस्तान का ये नहीं हो रहा था जी कि जी कश्मीर है? बीबी बात सुने मेरी, मैं अब आपको बताऊं, अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी तो लाहौर में कॉलेज होता है इस्लामिया कॉलेज, कूपर रोड, एसपी होते थे असगर खान, जिनको उर्फ हलाकू खान कहा जाता था। वहां इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड के अंदर जाकर खवातीन को, जो बेचारी बच्चियां बाहर आना चाह रही थी, उन्हें लाठियों से मारा गया, आंसू गैस चलाई गई थी उन पे, नील पड़ गए थे। तो वो भी पाकिस्तान ही का शहर था लाहौर, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। ऐसे वाकयात पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। खुदा का वास्ता है, इस पे फख्र करें कि हम अब भी एक आज़ाद और जमहूरी फज़ा कहाँ जम्मू कश्मीर और कहाँ उन पे जुल्म, कहाँ ये बात, मतलब कम, ये तो कोई उनकी क्या स्ट्रगल, क्या बात करते हैं। बहरहाल वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #BolBolPakistan_। अच्छा बीबी जल्दी जल्दी, चूंकि आज हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद तो देखो जो सूरत हाल है वो क्या पता डाइसी मंडे है। को जब हम आए क्या हो तो चुका। बाबा मंडे तक कुछ एक बहरहाल एक डाइसी सूरत हाल हाँ, है बहुत ना, ज्यादा। एक क्लियर कट एक यानी तसादम की सूरत हाल है। उसमें से मैं आई एम नॉट सेइंग कि हु विल विन, नहीं लेकिन मुश्किल है ना प्रेडिक्ट करना। रावलपिंडी से कॉल है, आप Difficult analysis situation. क्या करेंगे जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर्स को भी तो अकोमोडेट करना है जी। भैया अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नसरत साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, मैंने सिर्फ एक मैसेज देना था जी अपने इन सब कायदीन को कि पाकिस्तान को पाकिस्तान समझे। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट जी दिया। बीबी यहाँ पे चलें जी, वो बहरहाल ये कि हाँ जी। वो यानी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहने की बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये इन्होंने नहीं बांटा, हम सब ने भी दिलों में बांटा हुआ है। और ये इसको छोड़े। और भैया आप ज़रा थोड़ी देर के लिए टेलीफोन रोक दीजिएगा, क्योंकि लोग बहरहाल ये बात ज़रूर मालूम करना चाहते होंगे। मेरी अपनी दानिश में गुलमी ने इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता। नहीं, बॉस, एक बिल्कुल बात तयशुदा है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल जो इजलास हुआ है उसमें नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली अपने भाई को बहुत ताने दिए हैं। अच्छा, और उन तमाम लोगों को जो उन्हें डब होने का कि जी हाथ थोला रखो कह रहे थे। ओह ओके, नॉर्मली इट्स द अदर वे अराउंड ना, कि उनको कहते हैं आप जरा क्या कर रहे हैं, राइट। मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी रेपुटेशन है ना कि मियां साहब, हाँ, वही तो कह रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ वजीर आजम ने अपने भाई को कल डांटा। अपने Yes. तमाम उन लोगों को जो कहते थे कि नहीं जी नहीं बहुत सख्त जुबान में कहा कि सही नो है, वे, समझ गई, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस यस, और ही सेज कि इनफ इज इनफ। ठीक, अब वो उसी मोड में है जिसमें इमरान खान है। ठीक है। दूसरी तरफ इमरान खान का यह है कि कम वक्त में इमरान खान से, चूंकि इनके पास वो पॉलिटिकल एडवाइस प्रॉपर नहीं है, इनसे गलती हुई है। सियासत में हमेशा सरप्राइज का एलिमेंट रखा करते हैं। अच्छा बता दें, इनको चाहिए था कि कहते कि जी बस हम इकट्ठे हो रहे हैं 2 नवंबर को और वहां से एहतजाज ऐसा होगा, ये एक बाकी सरप्राइज रखते कि क्या होना। अच्छा ठीक कि जी हमने लॉकडाउन करना है, क्योंकि जब आप कहते हो ना लॉकडाउन ये वो, तो फिर उस तरह की स्पेस बनती है जैसे आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया। सही। अच्छा, अब अगर इनमें थोड़ा सा ठंडक दिखाते इमरान खान साहब, तो हाई कोर्ट के आज ही के फैसले के अंदर उनके पास यह है कि कंटेनर ना लगाए जाएं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक बात करनी थी कि जी मुझे ये जगह होगी, वहां पे लोग जमा हो जाते, उसके बाद जो होगा। इनके अपने कारकुन नीचे से करते नहीं जाना वजीर आजम हाउस जाना, वहां जाए क्या वहां जाना है, अच्छा चलो। ये क्या करता कि फिर क्या कर लेते आप, अब हो गया तो हो घरों गया, को जाने ठीक को है। इनकार कर रहा था। भुट्टो साहब ने बांग्लादेश कैसे मंजूर करवाया था, सही। क्या कर लूं, क्या मंजूर कर लूं हर शहर में जाके। करिश्मेटिक ओरेटर थे नुसरत साहब, अरे कुछ भी नहीं, बनवा सकते थे। ये भी है। अच्छा, अब इतने वो इमरान खान नहीं किया, नहीं है। अब वो मसला ये है कि अब इनकी अगरचे ये भी बात स्ट्रेटेजी की है कि अगर हर शहर में फसादात फूट पड़ेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा ना तो सारा फिर कुछ, मतलब इजलास होगा रावलपिंडी में, सही। वहां पे कहा जाएगा सर ये तो चीजें पूरे मुल्क में खाने फैल की तरफ रही बढ़ है, रही या हैं, तो जाएं और जाके इन्हें कहें जी कि आप, तो वो कहेंगे कि अच्छा जी मैं तो इस्तीफा नहीं देता, तो आप खुद आ जाए, खाना जंगी रोक लें। ठीक। तो उसके बाद किसी ने ये तो नहीं करना ना कि उसके बाद फिर मैं इधर बैठ के ये देखना, कराची से एक और कॉल है, जब वो आएंगे तो ये लाइव कॉल तो नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इमरान खान के साथ जो बैठे हैं वो इतने गलत मशवरे देते हैं, प्लीज आप ही उनको मशवरे दे दें। देखिए मैं उनको मशवरा देने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन वो मेरा मशवरा उनको पता नहीं कौन मशवरे दे दे के ये कह रहे हैं आप वजीर आजम बन जाएंगे। उनके बेहतरीन जो गाइड हैं इन दिनों बीबी, वो हैं रावलपिंडी के एक साहब हैं जिनके यहाँ कल जलसा भी है, कल वो जाएंगे। और आपको तो याद होगा कि वो खुद कहते हैं मैं बहुत देर से होल्ड पे थी, मेरी बात सुन ले, मैं कराची से बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इनके जो ऑफशोर कंपनियां कर रहे हैं, इनके साथ कितने करप्ट लोग हैं इमरान खान के अरे साथ। खैर आप भी फिर वही बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मेरी आप सब लोगों से यही सिर्फ दाद फरियाद है कि बड़ी मुश्किल से
ہم پاکستانیوں اظہار کی، اجتماع کی، اپنے اپنے خیالات کو بیان کرنے کی سخت سے سخت الفاظ میں جو سپیس ملی ہے، جو جگہ ملی ہے، خدا را اسے ضائع نہ کریں بس. اور یہی میرا آپ سے درخواست ہے اور یہیں پہ کلوزنگ. ہاں اور کیا کہہ سکتے ہیں، منڈے کو آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آئے کیا مطلب نصرت صاحب ابھی تو ایسے خدا حافظ.